Good evening, students. This is the session for class 7th, chapter number 1st in geography or environment. Today we have to do question and answers of this chapter. So mark question and answers of this chapter in your book. First question is, what is the meaning of environment? So take out page number 110, first paragraph and first word. Word environment means surroundings or the conditions under which a person or a thing exists and develops its characteristics. Okay, this is the answer of first question. Just mark here, what environment means surroundings or the conditions under which a person or a thing exists and develops its characteristics. Okay, so move on to next question. What are the distinct realms of our earth? Now distinct realms of our earth is lithosphere, lithosphere, hydrosphere, and third is your biosphere. Okay, this one. Okay, lithosphere, hydrosphere and biosphere. Okay, next move on to third question. Why is earth called a watery planet? Why the earth called is watery planet? So the answer of this question is page number 112 hydrosphere के नीचे वाला पैराग्राफ है, उसमें दे रखा है that the earth is sometimes called the watery. Fourth line है, earth is what sometimes called the watery planet as this is the only planet that has the supply of water. Okay, this is the answer. ये इतना सा आंसर है आपका, is the only planet that is the supply of water. Next, move on to next question. How and why human being influence the environment? Now the answer of this question is, come on page number 110, last paragraph. You will see that man creates a wealth by using the gift of nature. Man is born in a family. As he grows, he moves about in the neighborhood and tertiary group besides his own family, which is the primary group. He learns about his natural environment such as kind of soils, water, land and vegetation. The natural environment built around the man made it basic needs. ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर आप लिख लेना, change और natural environment तक. This is the answer. Okay. Next, why is atmosphere important to all living beings? Now, why is atmosphere important? Now, the answer of this question is page number 112, and you will see that here, the importance of atmosphere. Atmosphere is an extremely important component of Earth's environment, without which life would not have flourished on Earth. So, these are 4 to 5 importance. You can write any 4 or 5 importance from this. Okay. Now, these are the importance you can see on the laptop. Now move on to next question. How is lithosphere important to us? उसी के पास में ही इसका आपको आंसर दे रखा है. देखो, lithosphere is of great importance to us. तो ये 1, 2, 3, 4, 5 importance दे रखी है ना, तो इन 5 importance में से आप कोई से भी 3 importance आप लिख लेना. ठीक है, फर्स्ट लिख लो एक सेकंड importance लिख लो और एक थर्ड importance लिख लो. तीनों ही बहुत ईजी हैं. ठीक है, you will feel good. Next, what all forms a biosphere? तो इसका आंसर आपको लास्ट में बायोस्फीयर वाले पैराग्राफ में मिल जाएगा. ठीक है, ये कि the relatively narrow belt of living organisms, both the planet and animal life is called biosphere. The bacteria to huge trees or large whales and elephants are the part of this biosphere. ठीक है, this is the answer of next last question, what all forms of a biosphere. Okay, next move on. अब इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है, डिफरेंस. ठीक है, बिटवीन द फॉलोइंग फिजिकल एनवायरनमेंट और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट. तो इसके लिए पेज नंबर 1110 पर आइए, फर्स्ट पेज पर आओ, उसमें देख लो सेकंड पैराग्राफ में आपको इसका आंसर दे रखा है. द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑन द अर्थ इज एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इन वेरियस फॉर्म्स. द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स द फूड एंड द अदर मटेरियल्स फॉर द सस्टेनेंस ऑफ मैन ऑन द अर्थ. ठीक है, इसका आंसर अर्थ तक, द फिजिकल एनवायरनमेंट से लेकर मैन ऑन द अर्थ तक इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आता है बायोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर. तो इसमें तो बायोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर तो आप देख लो, ये तो हो गया आपका हाइड्रोस्फीयर. ठीक है, सारा नहीं लिखना है आपको इसमें. वाटर इज वाइटली इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, ये हाइड्रोस्फीयर तक लिखना है. वाटर से लेकर अर्थ फॉर्म द हाइड्रोस्फीयर. और ऐसा ही कुछ बायोस्फीयर में आपको लिखना है द रिलेटिवली नैरो से लेकर पार्ट ऑफ दिस बायोस्फीयर तक. ठीक है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना आप लिख सकते हैं. हाइड्रोस्फीयर में वाटर से लेकर हाइड्रोस्फीयर तक, और यहाँ रिलेटिवली नैरो बेल्ट से लेकर बायोस्फीयर तक.
नेक्स्ट लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो देखो लिथोस्फीयर तो आपको यहाँ मिल जाएगा, लिथोस्फीयर तो ये रहा, ये यहाँ पे है। द वर्ड लिथोस्फीयर इज जनरली रेस्ट्रिक्टेड टू द अर्थ सॉलिड, से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है ये बिलो द क्रस्ट, ये हो गया लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर के साथ क्या है, एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर का आपको मिल जाएगा यहाँ पे एटमॉस्फेयर ये, ठीक है। एटमॉस्फेयर, द टर्म एटमॉस्फेयर रेफर्स टू थिक गैसियस, से लेकर आप लिख सकते हो सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर हो गया। और उस नीचे जो मैंने बताया वो लिथोस्फेयर हो गया। नेक्स्ट आता है सियाल एंड सिमा। तो इसका आंसर पेज नंबर 112 पे ही आपको मिल जाएगा, लिथोस्फीयर वाले पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में, कि सियाल इज द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। इन सियाल्स, साई मीन्स सिलिका, एल मीन्स एल्यूमिनियम, ठीक है। और इसके ऊपर जो सीमा है, सीमा इज द नेक्स्ट लेयर बिलो सियाल। इन सीमा, एसआई मीन्स सिलिका एंड मा मीन्स मैग्नीशियम। तो द डेंसिटी ऑफ सीमा इज हायर देन सियाल, ठीक है। इसका आंसर ये वाला आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है शॉर्ट नोट्स, ठीक है। अब शॉर्ट नोट्स में आपको क्या लिखना है, थिकनेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो इसका आंसर देखो आपको यहां मिलेगा पेज नंबर 112 पे आओ, लिथोस्फीयर वाले पैराग्राफ के अंदर आपको मिलेगा इसका आंसर ये रहा। The thickness of the earth crust is greater in continents than on the ocean floors. Rocks forming the earth crust are of lower density than those below the crust. ये इसका आंसर हो जाएगा जो मैंने बोला, thickness of the earth crust का, ठीक है। यहाँ से the thickness of the earth crust से लेकर below the crust तक, ओके। चलें आगे। Composition of atmosphere। Composition of atmosphere का आंसर आपको मिलेगा ये रहा, कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप द एटमॉस्फेयर इज़ मेड अप ऑफ मेन जो चीज़ें हैं वो आपको लिखनी है। एटमॉस्फेयर इज़ मेड अप ऑफ अ मिक्सचर से लेकर आप यहाँ तक आप लिख लो लोअर लेयर्स, ठीक है। एटमॉस्फेयर कंटेन्स वेरिएबल क्वांटिटीज ऑफ वाटर वेपर इन द लोअर लेयर्स, यहाँ तक आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है ओशन वाटर एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। तो इसका आंसर देखो आपको मिलेगा पेज नंबर 1112 पे, ये ओशंस से, ठीक है। Ocean forms 71% of total surface area of the earth. The continents may be considered large islands rising from the vast oceans, single continuous expanse of interconnected bodies of water, ठीक है। ये यहाँ आप यहाँ तक लिख सकते हो, separating the continents तक, ठीक है। आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। Oceans form 71% से लेकर separating the continents तक, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है चेंजेस इन नेचुरल एनवायरनमेंट। तो इसका आंसर आपको फर्स्ट पेज पे मिलेगा, ये है सेकंड पेज पे। एक बार आओ, पेज नंबर आओ 111 पे, 111 पे ऊपर देखना, ये आंसर है। इंक्रीजिंग डिमांड, ये रहा नेचुरल अलोंग द फिजिकल एनवायरनमेंट बेनिफिट इकोनॉमिकली मैन इकोनॉमिकली, बट एट द टाइम्स इट अफेक्ट्स द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट नेगेटिवली। क्वेश्चन क्या है, चेंजेस इन नेचुरल एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस, ये रहा, ये यहाँ पे है पेज नंबर 1111 पे, यहाँ पे है 1111 पे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा द नेचुरल एनवायरनमेंट बिल्ट अराउंड द मैन मेड इट्स बेसिक नीड्स, है ना। ये इंक्रीजिंग डिमांड, एस्पायरेशन ऑफ सोसाइटी क्रिएटेड राइजिंग डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस, मैन इम्पोजन सर्टेन चेंजेस फॉर नेचुरल एनवायरनमेंट। या द नेचुरल एनवायरनमेंट से लेकर आपको लिखना है नेचुरल एनवायरनमेंट, यहाँ नेक्स्ट सेकेंड पैराग्राफ तक, ठीक है। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट जो है रीजंस। तो रीजंस मैंने आपको देखो यहाँ दे रखे हैं, ये सारे रीजंस हैं। फर्स्ट वाला है मैन कैन नॉट सर्वाइव ऑन अर्थ विदाउट प्लांट एंड एनिमल लाइफ। नेचुरल एनवायरनमेंट फुलफिल करता है बेसिक नीड्स जो ज़रूरतें हैं इंसान की, उसको। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिफाइन द लिमिट्स ऑफ एटमॉस्फेयर के लिमिट्स डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। वाटर वेपर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एटमॉस्फेयर का, ठीक है। और विदाउट एटमॉस्फेयर लाइफ नहीं है, वो ग्रो नहीं कर सकती आपकी अर्थ पे। एंड थिकनेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज ग्रेटर इन द continents than on the ocean floor. नेक्स्ट आता है सॉलिड सॉइल। सॉइल्स आर इंडिस्पेंसिबल, सॉइल बिल्कुल ख़त्म, अलग और अलग नहीं हो सकते। विदाउट वाटर लाइफ इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल ऑन अर्थ, बिना पानी के लाइफ जो है वो आप इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसके आंसर्स हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद ये नेचुरल एनवायरनमेंट फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ ए मैन, ये सेकेंड है। थर्ड ये है it's not possible to define the limits of the atmosphere. Water vapor is an important constituent of atmosphere.
धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ जिससे आप इजीली वीडियो को देख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स जो है उसमें लास्ट में ये आता है आपका कि द डैश एनवायरनमेंट रेफर्स टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। सेकेंड, द फिजिकल एनवायरनमेंट इज एसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इन वेरियस फॉर्म्स, इंक्रीजिंग डिमांड एंड एस्पिरेशंस of society, creating rising demand for goods. The dash envelope surrounds the earth. Air envelope. Gases, the atmosphere is made up of mixture of gases. Seal is the outer layer of the earth crust, and land masses are carved into a variety of landforms by the forces of nature. अब जो इसमें प्रोजेक्ट वर्क दे रखा है, जब अपने स्कूल्स ओपन होंगे तब ये आप प्रोजेक्ट वर्क अपन करेंगे। टिल देन दिस चैप्टर इज फिनिश्ड. Tomorrow we will start chapter number 1st in civics. Till then, thank you. Bye bye.